गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है साम 26 वर्सेस 4 to 7, भजन संहिता 26 4 से 7। I do not sit with the deceitful, nor do I associate with hypocrites. I abhor the assembly of evildoers and refuse to sit with the wicked. I wash my hands in innocence and go about your altar, Lord, proclaiming aloud your praise and telling of all your wonderful deeds. Amen. आप देखें, दाऊद जो है एक घोषणा करता है, ही डिक्लेयर्स कि वो क्या करता है। आप देखें, दाऊद के बाद जो है उसका जो राज्य है उसकी रिलेशनशिप परमेश्वर जो है इट फेडेड हुए। आप देखें नीति वचन उसका 13-20 में नीति वचन 13-20 Proverbs 13 verse 20, and it says, just a minute. Proverbs 13-20 नीति वचन 13:20, Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. आप देखें वचन का लेखक है, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ दुष्टों के साथ नहीं चलता हूँ न बैठता हूँ। नीति वचन में भी बात कही गई है कि जो मूर्ख है उसके साथ बैठना मुँह कहलाता है। आप देखें, जैसे मैंने कहा कि यशायाह के कहता है कि दाऊद का जो वंश है उसके जो रिश्ता परमेश्वर का जो है धीमे 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 बढ़ता गया। आप देखें यशायाह चैप्टर 1 वर्ष में क्या कहा गया 11 में। Isaiah chapter 1 verse 11. The multitude of your sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings, of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. आप देखें जो sacrifice हैं, they're meaningless without relationship. आप देखें यशायाह 1:18 में क्या कहता है। Isaiah 1:18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. आप देखें परमेश्वर कहता है आओ आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप जो हैं कैसे भी हों मैं उन्हें धोकर इनसे भी श्वेत कर दूंगा। आप देखें जो यूहन्ना में कहता है वहाँ जो परमेश्वर है वो आत्मा है, वो ऐसे ही लोगों को कूदता है जो आत्मा सही से उसकी आराधना करें। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 से 24 पद। यूहन्ना 4 23 से 24। यूहन्ना 4 यूहन्ना 4 अध्याय 23 से 24 पद। John 4:23 to 24. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Amen. आत्मा सच्चाई से भजन करें। आप देखिए वर्ष 6 में Verse 6 of Psalm 26 Psalm 26 verse 6. It says, I wash my hands in innocence and go about your altar, Lord. आप देखें दाऊद जो है डिक्लेयर करता है, वो बात करता है उन लोगों की जो इविल हैं, बात करता है उनकी जो हिपोक्रेट हैं, बात करता है अपने आप की कि मैं इनोसेंट हूँ। आप पढ़ लीजिए भजन 43 3 और 4। Psalm 43 verses 3 and 4. Send me your light and your faithful care. Let them lead me. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell.
आप देखें एक्सोडस चैप्टर 33 में 21 में 21 से 21 में कहता है, यहाँ जो है पिछले एडवाइस हैं. Exodus 30:17-21. Then the Lord said to Moses, make a bronze basin with its bronze stand for washing. Place it between the tent of meeting and the altar, and put water in it. Aaron and his sons are to wash their hands and feet with water from it. Whenever they enter the tent of meeting, they shall wash with water so that they will not die. Also, when they approach the altar to minister by presenting a food offering to the Lord, they shall wash their hands and feet so that they will not die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants for the generations to come. आप देखें, God is not interested in all these activities, sacrifice, but He is interested in sincere worship. आप देखें जो यहाँ जो लिखा हुआ है वो है सिंसियर वर्शिप में जो है परमेश्वर ध्यान करता है. आप देखें वर्स 7. Verse 7 of Psalm 26 says, it says, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं, proclaiming aloud your praise and telling of all your wonderful deeds. आप देखिए जो बात वहाँ करता है वो करता है वेदी के चारों ओर जाकर वो दो चीजें करता है. पहली चीजों को धन्यवाद देता है, परमेश्वर ने क्या किया है वो क्या करेगा. आप देखें भजन 26:4-6 में, Psalm 26 verse 4-6 में, 26:4-6. I do not sit with the deceitful, nor do I associate with hypocrites. I abhor the assembly of evildoers and refuse to sit with the wicked. I wash my hands in innocence and go about your altar, Lord. Make it clear, God is not interested in hypocrisy. He is interested in sincere worship. आप देखें परमेश्वर जो है बाकी फालतू होने की में विश्वास नहीं करता. He is interested in spiritual worship, relationship. आप देखें पहला थिस्सलुनीस का 5 और 8. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. James 1:17. James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. आप देखें यह लैंड डेज मैं और आप इन दिनों में ध्यान कर रहे हैं हमारे जीवन के बारे में. आप पढ़ लीजिएगा लूका 8:39. Luke chapter 8 verse 39. Return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. आप जो है लौटाइए, मैं भी जो लौटाऊं कि परमेश्वर ने क्या किया है. मेरे और आपके लिए उसने अपने पुत्र को भेजा. Hallelujah. वो देखिए मेरे आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा. उसने क्या किया है ये आगे दी है जो उसने मेरे लिए किया है, उसे बाहर जाकर मैं और आप बताएं, उस बात की जो गवाही दें. भजन 66 उसके 16 में पढ़िए. Psalm 66 verse 16. Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what he has done for me. आप देखें यहाँ से बुला रहा है, come and hear what God has done for me, even for me. ये है ईश्वरीय बुलाहट, ये है आत्मिक बुलाहट. आप देखें दाऊद अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन में जो कार्य उसने किए उसे एक बात की गवाही देता है परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया. आप देखें यशायाह 1:18 में जो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें. उसके बाद जब बात करें तुम्हारे जो गुनाह हैं चाहे इसराइल के हों
चाहे उस रंग के हों, लाल रंग के हों या धन रंग के हों, मैं उन्हें धोकर इनसे भी श्वेत कर दूंगा। ये जो है बुलाहट है। अब क्या करें, यदि बुलाहट में मिली है तो हमें जवाब देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। वो आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, शायद आपने आज मीटिंग अटेंड करी होगी, इसमें तुम्हारे सामने बताया होगा कि कैसे आपको जो है बुलाहट को सुनना है और उसका रिस्पॉन्ड करना है। आइए फिर एक बार, यदि आपने आज परमेश्वर की बुलाहट को सुना है, उसे हाँ आमीन करिए, जवाब दीजिए। आइए प्रार्थना करें। और मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अगर आप उन्होंने आपकी बात को सुना है कि आप जो हैं बलिदान में इंटरेस्टेड नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं आराधना में जो आत्मा और सच्चाई की जाए, तो मुझे आप दया कीजिए, हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिएगा। यीशु नाम से मांगते हैं, हमें हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हमें से हरेक के साथ जो है हमसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन।